Preview. Hello everyone and welcome again to the new basic learning, and today we are going to learn about the biology. The part is 1 for class 9. The chapter is also new for you, that is the respiration in plants. So if we talk about the respiration, the first thing that comes in your mind, or you start imagining that inhaling and exhaling the air. That means taking in oxygen and giving out carbon dioxide. So if we talk about in plants, the equation becomes C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. What is this? This is glucose, oxygen. Let me tell you one thing. Oxygen, in the presence of oxygen only, glucose will break down into energy. Without the presence of oxygen, there will be no breakdown step that will convert the energy. Okay, that will convert the glucose into energy, that will break down. So this is the main part of this, which is oxygen. In the presence of oxygen only, the glucose will break down into energy form. So carbon dioxide, H2O, that is water, and finally energy. So let me tell you one thing before I forgot to tell, that what is respiration? The food that we take, how it converts into energy, the whole process of converting the food into energy, that whole process is called the respiration. So we will learn about the process. So this is the glucose plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy. Energy in the form of ATP. And what is ATP? Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. So respiration do not takes place in only in one step. It takes place in multiple steps. First step is glycolysis. That is glucose converts into pyruvate. ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पहले पायरुवेट में, और इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है पायरुवेट कन्वर्ट होता है एनर्जी में. और जरूरी ये भी नहीं है, मतलब ऐसा है नहीं कि पायरुवेट एकदम से ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में डीपली नहीं दे रखा है. अब आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको डीपली बताया जाएगा सब कुछ. तो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पायरुवेट कन्वर्ट होता है फाइनली एनर्जी में. तो इसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल. ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ आपको. रेस्पिरेशन जो होता है वो एक ही स्टेप में नहीं होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. मल्टीपल स्टेप्स, इट टेक्स प्लेस इन मल्टीपल steps. ठीक है. So first step is glucose convert into pyruvate, then pyruvate convert into energy. First step को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस. और दूसरे स्टेप को क्या कहेंगे? क्रेब्स साइकिल. तो ये जो ग्लूकोज और पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज जो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये अकर होता है साइटोप्लाज्म में. ठीक है. और पायरुवेट जो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको पहले भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल. सो लेट्स मूव टू द अनदर टर्म्स. नाउ let's see the breakdown of food, that is glucose,
in respiration. Glucose in the presence of oxygen releases carbon dioxide, H2O and energy. Energy is of two types, that is the heat energy and chemical energy. Okay, so ATP in the form of ATP, इसका मतलब क्या था ATP का? That is adenosine triphosphate. Tri मतलब 3 and then it converts into ADP, that is adenosine diphosphate. Di means 2. तो जब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है, एक रिलीज कर दिया इसने, देन इट कम्स 2 मॉलिक्यूल्स, 2 बचे, फिर ये वापस जाके कन्वर्ट होता है ट्राई में एंड देन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड इन वर्क. मैं एक बार और समझा देती हूँ. ग्लूकोज क्या है? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ओनली इट ब्रेक डाउन इनटू and releases carbon dioxide, H2O and energy in the two forms, that is the heat energy and chemical energy. Then energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. Tri means 3 molecules, then it converts into ADP. ADP means adenosine diphosphate and then diphosphate converts into again ATP and then the energy is used in the work. Okay, now let's move to the another terms. So now there are 2 types of respiration. Number 1 is aerobic and number 2 is anaerobic. Aerobic का मतलब होता है in the presence of oxygen. In the presence of oxygen. और anaerobic का होता है not in presence of oxygen. ओके, तो एरोबिक की जो इक्वेशन थी वो पहले जैसी ही है, जो C6H12O6. ओके, एंड एनारोबिक में नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है. ठीक है, इट गिव्स इथेनॉल, ये ब्रेक डाउन होता है इथेनॉल में, इथाइल एल्कोहल. ओके, और एरोबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो मैं आपको दोनों की इक्वेशंस बता देती हूँ. एंड एरोबिक के लिए होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ध्यान रखना है, एरोबिक का क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड एनारोबिक का होता है नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक जो होता है ना वो टेम्परेरी पे होता है, टेम्परेरी बेसिस पे होता है, ये परमानेंट नहीं होता, कुछ टाइम के लिए होता है. ठीक है, तो इक्वेशन है एरोबिक की C6H12O6 प्लस CO2 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस जो ATP के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं ना वो 38 मिलते हैं, 38 निकलते हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो 38 ATP के मॉलिक्यूल्स में 30. आपको याद रखना है कि 38 मॉलिक्यूल्स होते हैं. ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक में. ठीक है, एनारोबिक की होती है C6H12O6 गिव्स, ये क्या है? इथेनॉल, और यू कैन से इथाइल एल्कोहल. ठीक है, प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP. इसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसमें बहुत कम, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, तो इसके 2 ही मॉलिक्यूल्स निकलते हैं. ओके, तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ना वो ऑक्सीबायोटिक भी होता है, ऑक्सीबायोटिक कहते हैं आप इसको. ओके, ऑक्सीबायोटिक. और दूसरे वाले को जो एनारोबिक है उसे हम कहते हैं एनऑक्सीबायोटिक. एनऑक्सीबायोटिक. ओके, एरोबिक ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे पुट अप होते हैं. इनकी इक्वेशंस भी आती हैं, इनकी इक्वेशंस आपको हमेशा याद रखनी है, और मॉलिक्यूल्स कितने निकलते हैं दोनों में वो भी याद रखने हैं. इनको ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट इज ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एनऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन. तो आपको ध्यान रखना है दोनों नेम्स कौन कौन से हैं. तो ये ऑक्सीजन में प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस.
एनारोबिक में अगर मैं आपको बताऊं तो प्लांट्स में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन टेम्पररी पे होता है, ठीक है. मतलब कि अगर ऑक्सीजन मान लो फ्रूट्स में या सीड्स में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है टेम्पररी बेसिस पे, तो ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स और सीड्स मर जाएंगे. ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो ये टेम्पररी बेसिस पे होता है, इसलिए अगर ये बहुत टाइम के लिए हो जाए तो दे विल नॉट सर्वाइव एनी मोर. ओके. और कुछ फंगाई और बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं. ओके, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी वो जिंदा रह सकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज एंड फंगाई. सो दैट वाज द पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू द अदर टर्म्स. लास्ट में हम देख लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है, इट इज नीडेड. और एनारोबिक में ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती. ऑक्सीजन मतलब प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. एरोबिक में एंड प्रोडक्ट क्या होता है? CO2 और वाटर. एनारोबिक में एंड प्रोडक्ट क्या होता है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इथेनॉल क्या है? इथाइल अल्कोहल. फिर एरोबिक में ATP के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 38. ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो निकलते हैं ATP के फॉर्म में वो होते हैं 38. और एनारोबिक में ओनली 2, स्मॉल क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, मतलब बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है. फिर ये होता है परमानेंट में, परमानेंट बेसिस पे होता है, ये तो होता ही है एरोबिक रेस्पिरेशन. और ये जो होता है ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है. आपको टेम्परेरी में ले सकते हैं आप कुछ पार्ट्स, फ्रूट्स, प्लांट्स के पार्ट्स ले सकते हैं, जैसे फ्रूट हो गया, सीड हो गया. अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब कि अगर इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं भी आ पा रही है तो ये लिव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे. ओके. और अगर मैं आपको ये बताऊं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन से ऐसे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई. ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं. So this was the part 1 of the chapter respiration in plants. For the next part, stay happy, stay tuned. Till then, goodbye.